آئیے وہ بھی وقت ہے کہ ہم کلام مقدس کی طرف متوجہ ہوں۔ اس سے بیشتر کہ ہم کلام مقدس کی طرف اپنی دھیان اور اپنی توجہ کو لگائیں۔ آئیے کلام مقدس میں سے آج ہماری تربیت اور نصیحت، اصلاح اور تقویت کے لیے جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے، مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، بڑا مقبول ورد ہے اور بہت ہی پسندیدہ، اور اکثر جو ہے وہ نئے سال کے اوپر اس ورد کا بہتات کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب، اس کی 6 آیت سے لے کر 9 آیت تک کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب، اس کی 6 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے داغستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا اور اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں اپنی ساری کمزوریوں کو تیرے حضور میں انڈیل دیتا ہوں۔ اے خداوند، کم علمی اور اے خداوند کم مائکی، اے خداوند تیرے ہاتھ میں رہے اے خداوند، اور مجھے اے خداوند بولنے کی اے خداوند سکت دے، اپنی اے خداوند رہنمائی میں اے خداوند لے کے چل، روح القدس کی سہایتا میسر ہو اور میرا رجحان جسم اے خداوند اس کے تابع رہے۔ خداوند ہم سے ہم کلام ہو اور اے خداوند تمام ارواح کو عقل و دانش بخش، تاکہ اے خداوند وہ کلام مقدس کو سمجھے، اور اے خداوند حاضر جماعت اور اے خداوند جو اس کے بعد اس ریکارڈنگ کو اے خداوند سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اے خداوند تیرے جلال کے لیے اے خداوند برکت پائیں، اور اے خداوند تو کثرت سے انہیں اے خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ آج جس مضمون یا جس عنوان کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ ہے آخری کوشش یا آخری موقع۔ یہ 2 چیزوں کے بارے میں یا 2 الفاظ کے بارے میں آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ آخری کوشش، آخری موقع، آخری موقع، آخری کوشش۔ جب ہم اس ورد کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے وہ نا امید نہیں ہے۔ خدا ہمارے بارے میں پرعزم ہے، وہ نا امید نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں بار بار اپنی کوشش کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم اس کی کوشش کا حصہ بنیں۔ ہم موقع ڈھونڈتے نہ رہے بلکہ ہم اس کی کوشش کا حصہ بنے۔ وہ پرعزم ہے، وہ آپ سے امید رکھتا ہے،
وہ آپ سے امید جو ہے چھوڑتا نہیں، اس کی امید ٹوٹتی نہیں آپ کے کسی بھی فیل کی وجہ سے، بلکہ وہ آپ کے ساتھ پرعزم ہے۔ اس لیے وہ متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں کہتے ہیں، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کے لیے خداوند کہہ رہے ہیں میرے پاس آؤ۔ تم نے بڑی کوشش کی، تم نے بڑی محنت کی، تم نے بہت کچھ سہا، لیکن تم وہ نہیں پا سکے جو تمہیں پانا چاہیے تھا۔ اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یہ نہیں کہ وہ آپ سے کام جو ہے وہ آپ کی زندگی سے ختم کر دے گا، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ کام کرو، میری کوشش میں شامل ہو جاؤ، میرا جوا اپنے اوپر اٹھاؤ، مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں دل کا فروتن ہوں اور حلیم ہوں۔ اس ورد کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت تمثیل خداوند جو ہے وہ بنی اسرائیل کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ تمثیل ہے ایک شخص کی، مالک ہے پاکستان کی، انجیر کے درخت کی اور ایک باغبان کی۔ یہ کردار ہے ہمارے سامنے۔ انجیر کا جو درخت ہے یہ اکثر فلسطین کے اندر، اکثر یروشلم کے اندر، اکثر پاکستانوں کے اندر جو ہے وہ انجیر کا درخت لگایا جاتا تھا۔ بہت جو لوگ ہیں وہ انجیر کے درخت کو اپنے پاکستان میں لگاتے تھے، اور یہ جو انجیر کا درخت ہے یہ بائبل مقدس کے چند خاص درختوں میں سے ایک ہے۔ اور اگر آپ پہلا سلاطین اس قضات کی کتاب اس کا 9واں باب 8ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک پڑھیں تو آپ کو وہاں پر یوتام ایک کہانی سناتا نظر آئے گا، اور وہ کہتا ہے کہ کسی زمانے میں درخت چلے کہ وہ اپنا کسی کو بادشاہ بنائے، تو انہوں نے سب سے پہلے زیتون سے پوچھا تو ہمارے اوپر بادشاہی کر۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا اور انسان دونوں مجھ سے خوش ہیں، اس لیے میں بادشاہی نہیں لینا چاہتا۔ وہ پھر انجیر کے پاس آتے ہیں، انجیر سے کہتے ہیں تو ہم پر بادشاہی کر۔ انجیر بھی کہتا ہے نہیں نہیں، میں اپنے پھل اور اپنی مٹھاس کو چھوڑ کر بادشاہی کرنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ پھر وہ انگور کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو ہم پر بادشاہی کر۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا اور انسان دونوں مجھ سے خوش ہیں، اس لیے میں بادشاہی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اونٹ کٹارے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اونٹ کٹارا اکثر ایک چھوٹی سی جھاڑی نما پودا ہے، اس کے پاس جب جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ تو ہی ہم پر بادشاہی کر۔ تو اونٹ کٹارا کہتا ہے، اتنے تناور درختوں کو اونٹ کٹارا کہتا ہے کہ آؤ، اگر تم آج مجھے مسا کر کے اپنا بادشاہ بناتے ہو تو آؤ میری چھاؤں میں بیٹھو، لیکن اگر نہیں تو مجھ میں سے آگ نکلے گی اور تمہیں کھا جائے گی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ انجیر کا درخت بائبل مقدس کے چند خاص درختوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس کو تشبیہاتی طور پر بڑا معنی خیز بیان کیا گیا ہے بائبل مقدس میں۔ انجیر پاکستان کے اندر 4 حالتوں میں یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پر یہ ذمہ داری، اور نمبر 2 پر یہ کاموں کو بیان کرتا ہے، اور 4 حالتوں میں یہ جو ہے وہ خاص طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پہلا سلاطین اس کا 4 باب 25ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اور سلیمان کی عمر بھر
यहूदा और इसराइल का एक एक आदमी अपनी ताक और अपने अंजीर के दरख्त के नीचे दान से बेरसबा तक अमन से रहता था। तो ये दरख्त जो है ये अमन और ईमान के बलबूते के ऊपर जो है वो अपनी एक आला तरीन जो है वो मोहर छोड़े हुए है। और इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में आपको बेशुमार कहानियां और दास्तानें और हादसात जो है वो मिलेंगे। लेकिन आज हम जिस बारे में सीखेंगे वो है हमारे पास मौका। कई बार हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, हम मौके पर मौकों से फायदा उठाए जाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, हमारी जिंदगी के अंदर कोई बेदारी नहीं आती। मौका जो है इसका तारुफ यह है, ऐसे हालात का मजमुआ जो हमें कोई ना कोई ऐसा काम जो हमें मतलूब हो उसको करने में आसानियां पैदा करे या उसको करना मुमकिन बना दे, उसको मौका कहते हैं। लेकिन ये जो दरख्त है हम देखते हैं इसको 3 मौके दिए गए। अगर आप ज़बूर 90 पढ़े तो वहां पर दाऊद बादशाह जो है वो कहता है कि हमारी उम्र जो है वो 70 और 80 के दरमियान है। हमारी उम्र 70 और 80 के दरमियान है। अगर हम इन दोनों के दरमियान खड़े हो तो हर 25 साल के बाद हमें एक मौका दरकार है। 25 साल इंसान अपने आप को, जवानी को, बचपन को, आने वाली जिंदगी को समझते हुए सर्फ कर देता है। वो अपने आप को समझ रहा होता है कि मैंने क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं और आने वाले वक्त में मुझे क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो दरपेश होंगी। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो 25 सालों के अंदर, इब्तदाई 25 सालों के अंदर हमारी सोच का महवर ही ये बातें नहीं थी। 25 साल की उम्र के अंदर हमारी सोच की महवर जो बातें थी वो थी दोस्ती, वो था एक आजादाना रवैया, वो था एक खुद मुख्तार जिंदगी जीना, और हमने जिंदगी के अनमोल पहलुओं को जो है वो नजरअंदाज कर दिया। ऐसा ही सामरी औरत के साथ हो रहा है। सामरी औरत अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी रही है, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के मंसूबे पर गौर करते हैं, ये उस वक्त की बात है जब कोई सामरिया के अंदर से गुजरता नहीं था यहूदी। वो समझते थे कि अगर हम सामरिया के अंदर से गुजरेंगे तो नापाक हो जाएंगे, हमें नफरत अंगेज लोगों का सामना करना पड़ेगा, हमारे कपड़े उनके साथ छुएंगे। इसलिए कोई यहूदी सामरिया में से होकर सफर नहीं करता था। लेकिन खुदावंद के बारे में लिखा है, उसने जाना था और उसने कहा मुझे सामरिया में से होकर जाना जरूर है। आज क्या बात थी सामरिया में कि आज वो सामरिया में से होकर जाना चाहता है। आज क्या काम था उसे कि आज वो सामरिया में से होकर जाना चाहता है। आज वो सामरिया में से इसलिए होकर गुजरना चाहता है कि वो आप को और मुझे दिखाए कि उसके काम करने का तरीका क्या है। शागिर्द खाना लेने चले गए, खुद सुखार के एक गांव के कुएं पर वो बैठ गया। एक औरत, सामरी औरत,
घड़ा उठाए हुए, अपना डोल लिए हुए, जो भी उसके पास पानी का बर्तन था, कुएं पर आती है और वो उससे पानी मांगता है। सारी कहानी आप जानते हैं। खुदावंद के अल्फाज को दोहराना चाहता हूं। जब वो बहुत उसके साथ मुकालमे करती है तो खुदावंद उसे कहते हैं, यूहन्ना की इंजील 4 बाब 10वीं आयत, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, मैं आज क्यों यहां हूं? मैं क्यों सामरिया में से होकर गुजर रहा हूं? मैं क्यों इस कुएं पर बैठा हूं? मैं क्यों तेरा इंतजार कर रहा हूं? मैं क्यों तुझसे पानी मांग रहा हूं? कहते हैं, अगर तू जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। कोशिश आप अपने लिए देखें, कौन आपके लिए कोशिश कर रहा है, कौन आपको अपनी कोशिश में शामिल करना चाहता है। उसे सामरिया में से होकर जाना जरूर था। आज खुदा ने उसकी मुलाकात सामरी औरत से मुकर्रर कर रखी थी। आज सामरी औरत के तब्दील होने का दिन था। आज सामरिया के शहर के लोगों को नजात से मुतारिफ करवाने का दिन था। और जब हम कोशिश के लफ्ज के लिए गौर करते हैं तो कोशिश हमेशा हमारे लिए दूसरा करता है कि हम कामयाब हो जाएं, हम आगे बढ़ जाएं, हम नुकसान से बच जाएं, हम मुश्किलात से बच जाएं। और वो कोशिश हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने की। वो कोशिश इस अंजीर के दरख्त के लिए बागबान ने की। वो कोशिश इस दुनिया के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने की, खुदा के बेटे ने की। और फिर एक और किरदार हमारे सामने आता है। खुदावंद यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर हैं, रात वहां गुजारी, सुबह सवेरे वो हैकल के सहन के अंदर है। इतनी देर में एक भीड़ उसकी तरफ आती है। खुदावंद भीड़ को देखते हैं और सबसे पहले जो है वो फरीसी हैं, लंबे चोगे, बड़े बड़े जो है चाक। खुदावंद उनको देखते हैं। उसके बाद एक अम्बोल है जो भीड़ नुमा है और एक औरत को घसीटते हुए वो उसके पास लाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, मूसा की शरीयत कहती है कि इस औरत को जो ऐन फेल पर पकड़ी गई है संसार किया जाए। तू क्या कहता है? खुदावंद कहते हैं, मेरा फैसला यह है कि हर वो आदमी इसको पहला पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। और फर्श पर कुछ लिखने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सब चले गए। वो लड़की, वो औरत अकेली खड़ी रह गई। खुदावंद ने उससे पूछा, आए औरत, ये कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया? उसने कहा, नहीं खुदावंद। खुदावंद का रहम देखिए, फजल देखिए, उसकी मनसूबाबंदी देखिए। वो कहता है, जा, मैं भी नहीं लगाता, लेकिन आइंदा गुनाह ना करना। उसकी कोशिश हमेशा इंसान को जिंदगी देने वाली है। उसकी कोशिश हमेशा इंसान की भलाई के लिए फिक्रमंद रहती है। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब
10वीं और 11वीं है। यीशु ने सीधे होकर उसे कहा, अय औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, अय खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। आप इस शर्त को समझे? खुदावंद ने कहा, सबसे पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। कोई था वहां ये वाला काम शुरू करने वाला, कोई था वहां जो ये हक रखता था कि पहला पत्थर मारे। ये वही बात कर रहा है जिसने कभी गुनाह नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? इसलिए खुदावंद ने कहा, जा, मैं भी नहीं लगाता, क्योंकि हालांकि मैं ये हक रखता हूं, हालांकि मैं बेगुनाह हूं, हालांकि मैं इस चीज का जिम्मेदार हूं, लेकिन मुझे तुझ पर रहम आता है। मैं तेरी लानतें उठाने वाला हूं, मैं तेरे गुनाह उठाने वाला हूं, मैं तेरा फिदिया हूं, मैं तेरा कफारा हूं, लेकिन आइंदा गुनाह ना करना, आइंदा इस गजालत में ना जाना, आइंदा इस गंदगी से बचना। और इसके बाद अमीर आदमी का किरदार मेरे सामने आता है। अमीर आदमी को मौका मिला लाजर की सूरत में। गरीब लाजर उसके दरवाजे पर डाला गया कि अमीर आदमी अपना मजहब, अपना अकीदा, अपना ईमान ठीक कर ले, खिदमत करे इंसानियत की, फिक्रमंदी दिखाए गुर्बत को। लेकिन क्या हुआ? उसको अपनी ही मसरूफियात से फुर्सत नहीं थी। वो बेचारा लाजर, उसके नासूर कुत्ते चाटते, उसके लिए अच्छी जगह मुहैया नहीं की गई। उसको रोटी के टुकड़ों से पेट भरना पड़ता। आखिर दोनों ही इस दुनिया से चले गए। और जब अमीर आदमी जहन्नम में सर उठा के देखता है कि लाजर जो है वो बाप इब्राहिम की गोद में है, तो बाप इब्राहिम से कहता है कि लाजर को भेज ताकि ये अपनी उंगली का सिरा भगोकर मेरी जुबान को तर करे। मुझे लगता है जो बात वहां लिखी गई है उसके पसे पर्दा बहुत सारी बातें जो इब्राहिम उसको जवाब देता है। मुझे लगता है अमीर आदमी कहता होगा, मैं तो बहुत बाबरकत आदमी था जमीन पर, मैंने तो बहुत सारे लोगों की मदद की, मैंने तो बहुत सारे लोगों को कलाम सुनाया, मैंने तो बहुत सारे लोगों को उठा खड़ा किया, मैंने तो पता नहीं क्या 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 मैंने कर दिया तुम्हारे लिए, और मुझे दोजख में फेंक दिया गया। तो इब्राहिम उससे कहते हैं, याद कर कि तू अपनी जिंदगी में सब अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें। जब तूने अपनी चीजें इसके साथ शेयर नहीं की, जब तूने अपने खाने में इसको शामिल नहीं किया, जब तूने अपने इलाज में इसको शामिल नहीं किया, जब तूने अपने कपड़ों में इसको शामिल नहीं किया, जब तूने अपने घर में इसको शामिल नहीं किया, तो अब तू यहां पर तकलीफ उठाता है और वो अपनी जिंदगी जी रहा है। इसमें शिकायत की क्या बात है? क्या तुझे मौका नहीं था कि तू अपने आप को साबित करता? क्या तुझे मौका नहीं था कि तू इसकी खिदमत करता? इसीलिए तो ये तेरे दरवाजे पर डाला गया और अब तू शिकायत कर रहा है। आइए आज अपने लिए, अगर हम सामरी औरत की जगह पर हैं तो अपने लिए कोशिश करने वाले को ढूंढें, उसकी कोशिश में शामिल हों। वो हमारे फायदे के लिए कोशिश कर रहा है। अगर हम एन फेल पर पकड़ी गई औरत की जगह पर खड़े हैं, बहुत सारी
पोशीदा चीजें हमारे पास हैं, हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता सिवाय खुदा के। तो अपनी कोशिश करने वाले को ढूंढें। अगर आप अमीर आदमी की जगह पर खड़े हैं तो भी अपने गरीब लाजर को ढूंढें, जो आपकी तरफ खुदावंद की एक कोशिश है कि आप उसके लिए कुछ करें, उसकी कोशिश में शामिल हो, ताकि आने वाले वक्त के अंदर आपको वो दुख ना उठाना पड़े जो उसने उठाया, जो इन लोगों को सामना करना पड़ा। लूका की इंजील उसका 16वां बाब 20वीं और 25वीं है। और लाजर नाम एक गरीब नसूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। इसका मतलब है दुनिया के अंदर जो हमें मिल रहा है वो रायगा नहीं जाएगा। हम अपनी आसमानी जिंदगी की चीजों को वहां लुत्फ अंदोज होने की सहूलियात को इस दुनिया में खर्च करेंगे बेतुका और बेमकसद, तो हम आने वाले वक्त में नुकसान उठाएंगे, तड़पेंगे, मुश्किल का शिकार होंगे और खुदावंद की नजर में रुसवा। आइए वक्त है कि हम अपने आप को उस कोशिश में जो खुदावंद हमारे लिए रखता है, उसने आपके लिए कोशिश में आसमान को छोड़ दिया, आपके दरमियान आ गया, हर तरह की दुख तकलीफ बर्दाश्त की और आपको कोशिश करके जिंदगी में शामिल किया। आज वक्त है कि हम उसकी कोशिश का इकरार करें और अपने आप को उसके सुपुर्द करें। आइए खुदावंद इस कलाम के सबब से हमें बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए खुदावंद के बंदा उस्ताद मोहतरम हमारे दरमियान हैं, तो दरख्वास्त है कि कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ करें और जमात को कलाम बरक़ात के साथ रुखसत करें। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आमीन। फिर खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम फिर खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अबदी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं तेरे पैगाम के लिए। खुदावंद हमें तौफीक दे के हम तेरी मर्जी को पूरा करें और तेरे नाम को जलाल दें। फिर से खुदावंद हमें अपने वक्त पर इकट्ठा कर और खुदावंद अपने मकसद को हमारी जिंदगियों में पूरा कर। प्यारे खुदावंद दुआ करते हैं जो यहाँ नहीं, खुदावंद उनकी हिफाजत कर और प्यारे खुदावंद फिर से हमें इकट्ठा कर। रूत और विल्सन को खुदावंद अपने अजीम हाथ में महफूज रख और खुदावंद इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। यूसुफ और अजरा को भी खुदावंद अपने हाथ में महफूज रख, उनको सेहत दे, तेरा नाम जलाल पाए। फिर से खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले, अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अबदी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।